Should we start, students? लिख लिया आपने all 7 points written? All 7 points done? सपोज किसी को अगर नहीं लिखना आया, इफ इन केस किसी को नहीं समझा कौन से पॉइंट्स हैं, डोंट वरी एट ऑल, अभी सारे रिपीट करेंगे। तो इफ इन केस आपका ये पहला लेक्चर है, यू कैन लिसन टू देम एंड देन यू कैन राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हाँ, रुखसार इज रेडी, हु एल्स इज रेडी? स्टूडेंट्स रेज योर हैंड, किस किस का लिख के हो गया है? रेज योर हैंड। ओके, चलो ठीक है, यस यस, वी विल स्टार्ट विथ रुखसार। चलो रुखसार स्टार्ट करो, टेल मी और 7 पॉइंट्स अबाउट माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन के बारे में जो 7 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, वो ऑल 7 पॉइंट्स आपको बताने हैं, ठीक है? These 7 points के बारे में you have to detail. Yes, Rukhsar. Just a second. Just a second. Just a second. Yes. Now you can go ahead, Rukhsar. You can speak now. You can start now, Rukhsar. ऑडियो पे बोलना है। Rukhsar, can you hear me? Okay. Rifaq, please start. Mitochondrion is the powerhouse of the cell. It is located in the cytoplasm or cytosol of the eukaryotic cell. The function of mitochondrion is to produce ATP energy, which is also known as adenosine triphosphate. Mitochondrion has two membranes, outer membrane and inner membrane. The outer membrane is the continuous one, and the inner membrane has finger-like foldings, which is also known as cristae. The inner space of the inner membrane is known as matrix, and the space between the inner membrane and the outer membrane is known as intermembranous space. There are F1 particles located in the finger-like foldings of the inner membrane, which is also known as cristae. F1 particles have two other names, which is oxysomes and elementary particles. Next, well done, Rifaq. Next would be Payal Sawant. Mitochondria. Mitochondria is a cell organelle which is present in the cytoplasm of eukaryotic cell. Function. Mitochondria is also known as powerhouse of the cell. The function of mitochondria is to produce ATP, which provides energy to the cell. Membranous. Mitochondria is a double membranous structure. Outer membrane, it has outer membrane and inner membrane. Outer membrane is continuous while inner membrane has folding. These foldings are known as cristae. The region inside the inner membrane is called as matrix. The space between the outer membrane and inner membrane is called as inner membranous space. The finger-like foldings present on the cristae are known as F1 particles. F1 particles are also known as exosome and elementary particles. शाबाश, they are also known as oxysomes, ठीक है? Payal, oxysomes, OXY, ठीक है? वैसे इसको बुलाना है। Okay, good. Next will be Nidhi Singh. Yes, Nidhi. Mitochondria is present in the cytoplasm of eukaryotic cell. It is शाबाश. called powerhouse of cell because it produces ATP. ATP provides energy to the cells. There are two membranes, namely inner membrane and outer membrane. The outer membrane is continuous. Inner membrane has foldings, which is known as cristae. Inside cristae, the region is matrix. On the cristae, F1 particles are present, which are also known as oxysome or elementary particles. The region between two inner membrane and outer membrane is called intermembranous space. शाबाश. Next is Rishu. Yes, Rishu. बोल. Mitochondria is present in the
cytoplasm of the eukaryotic cell is mitochondria is the Yes. powerhouse of the cell because it produces ATP. Mitochondria have two membranes, inner membranes and outer membranes. Inner membranes is folding while outer membranes is continuous. Inside the inner membranes, inside the inner membranes region is known as matrix. Is the space between inner membranes and outer membranes is known as intermembranous space. The folding of inner membranes is known as cristae. In folding, there is present F1 particle. This is also known as oxism and an elementary Elementary particles. particle. Elementary particles. ठीक है, चलो next. खुशी. Mitochondria is present in the cytoplasm of eukaryotic cell. Mitochondria is also known as powerhouse of cell as it produces ATP. The mitochondria has two membranes, outer membrane and inner membrane. Outer layer is continuous and inner layer is folding known as cristae. The space inside the inner membrane is known as matrix. The space between the outer and the inner layer is known as intermembranous space. The particles on the surface of cristae is known as F1 particle, oxisome or elementary particles. Next is Afzal. Afzal बोल. Mitochondria is the cell component present in the cytoplasm of eukaryotic cell. Mitochondrion is the powerhouse of cell which produces ATP. It has two membranes, inner membrane and outer membrane. The outer membrane is continuous and the inner membrane has foldings which is known as cristae. The region inside the inner membrane is called matrix. The space between the inner membrane and the outer membrane is called intermembranous space. The F1 particles are present in the finger-like foldings on cristae. The F1 particles are also known as oxysomes or elementary particles. Shabash, well done, well done. Next is Sabika. Mitochondrion is a cell organelle placed in the cytoplasm of an eukaryotic cell. It is also called the powerhouse of the cell as it produces ATP. It is a double membranous organelle having inner and outer membrane. The outer membrane is continuous while the inner membrane has folds called cristae. The region inside the inner membrane is called matrix and the space between inner and outer membrane is called intermembranous space. The cristae has finger-like projections attached to it known as the F1 particles, also the oxygen. Shabash. Next will be Anurag. Yes, sir. बोल. Mitochondrion is cell organelle. The cytoplasm of a eukaryotic cell. Its function is to produce ATP. Thereby, it is called as the powerhouse of the cell. It is a double structure. And it has inner membrane and outer membrane. The outer membrane is continuous, whereas the inner membrane has foldings. The inner membrane has the region inside of it, which is known as matrix. There is a space between the inner membrane and outer membrane, which is known as intermembrane space. On cristae, there are finger-like foldings which are known as F1 particles. The F1 particle is also known as oxisome or elementary particle. And Next would be Abhijit. Abhijit. Aryan Sahani. Okay. Harini Shaktivel. Harini Shaktivel. Please explain mitochondrion. Jay Rajput.
जय राजपूत। ओके, सदिच्छा मसूरकर। स्टूडेंट्स, आप लोगों को या मुझे बोलना पड़ेगा कि आपको नहीं समझा है, या आपको मुझे आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, दो में से एक काम आपको करना पड़ेगा। अभी मैंने इतने लोगों का नाम लिया, आप लोग एक्सेप्ट आई थिंक सदिच्छा वाज स्टार्टिंग द आंसर नाउ, उसके अलावा बाकी किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया मुझे। सो इससे क्या होगा, इससे मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब आपको समझा नहीं है कंसेप्ट, ये आपको बोलने नहीं आ रहा है, समझ में तो आया बट बोलने नहीं आ रहा है। जो भी इश्यू है यू विल हैव टू टेल मी, ऑडियो ऑन करके बोलो कि कैन आई रिपीट इन हिंदी, मैं हिंदी में बोल सकती हूँ, या मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ, जो भी है। या मुझे 2 ही पॉइंट आते हैं, मुझे 3 ही पॉइंट्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट मैं आपको सिखा पाऊंगा ना। अगर आप रिप्लाई ही नहीं करोगे तो क्या होगा उससे, मुझे बताओ। कुछ भी आपको एडवांटेज मिल रहा है क्या उससे? आपने माइक भी ऑन नहीं किया मेरा, मैंने आपका नाम लिया, आपने माइक भी नहीं ऑन किया। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एब्सोल्युटली नो आइडिया। अगर आप मुझे ये नहीं बताओगे एट द एंड ऑफ लेक्चर, इफ यू से कि लेक्चर समझ में नहीं आया मुझे, तो इसमें किसकी गलती है बताओ? आपको समझ में नहीं आया, ये आपने मुझे समझने दिया क्या कि आपको समझ में नहीं आया? नहीं, है ना? सो आपको मुझे कन्वे करना पड़ेगा कि हाँ ये वाला पॉइंट, सपोज आपने 7 पॉइंट्स पूछे हैं, तो इन 7 में से आई कैन टेल यू 6 पॉइंट्स, आई नो 6 पॉइंट्स, या आई नो 2 पॉइंट्स, या आई नो 3 पॉइंट्स। और अपन ने ये पॉइंट्स अभी अभी कवर किया है। दिस इज नथिंग न्यू टू एनीवन, है ना? आपने अभी अभी कवर किया है ये सदिच्छा। Mitochondria is pres- जस्ट अ सेकंड ना सदिच्छा, जस्ट अ सेकंड। हरिणी प्लीज म्यूट योर ऑडियो, आई एम अनेबल टू हियर यू। हरिणी प्लीज म्यूट योर ऑडियो, मैसेज मी, यू कैन मैसेज मी। आई थिंक ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। चलो सदिच्छा प्लीज स्टार्ट। Mitochondria is present in the cytoplasm of the eukaryotic cell. It is called the powerhouse of the cell. It is responsible for ATP production. There are two membranes, inner membrane and outer membrane. The outer membrane is continuous and the inner membrane has foldings. The space between the inner membrane and outer membrane is known as intermembranous space, and the space inside the inner membrane is known as matrix. There are F1 particles on the inner foldings of the inner membrane. शाबाश, well done, well done, well done सदिच्छा, very well done. Next is रोहिणी। हरिणी आई एम अनेबल टू योर वॉइस। हरिणी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, तो ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। इधर आप हेडफोन निकाल के बात करो। हेलो So can I हेलो, say the answer? Hello. हाँ नाउ आई कैन हियर यू, वेरी गुड, गो अहेड। Mitochondria has a two part which is called inner layer and outer layer. Outer layer is also called as a continuous layer. Inner layer as foldings. Regionally between two membranes, inner layer membrane space. Regionally inside inner membrane is maximum F1 particles, oxygen, electronics particles. ओके, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, बहुत सारे स्टेटमेंट्स, वर्ड्स ठीक से नहीं बोले, नो प्रॉब्लम। Okay, sir. I will try again. हाँ शाबाश, वेल डन हरिणी, वेल डन, वेल डन। ओके नेक्स्ट इज रोहिणी। चलो रोहिणी। Mitochondria is present in the cytoplasm of an eukaryotic cell. Mitochondria is also known as powerhouse of the cell. It is present in, it produces ATP. There are two membranes, outer membrane and inner membrane. Outer membrane is continuous while inner membrane has foldings.
the space between the space between the inner membrane and outer membrane is known as intermembranous space, and the space between and the space inside the inner membrane is known as matrix. The foldings are known as cristae. There are F1 particles also known as oxysomes, and elementary particles that are present on the surface of the cristae. Very good. Present on cristae, shabash, towards the matrix region, correct? Present on cristae towards the matrix region. All right, ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट कंसेप्ट इज वी हैव टू स्टडी अबाउट क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे. सो माइटोकॉन्ड्रिया ने आपको एनर्जी बना के दिया. अब मैं चाहता हूं कि इफ आई सी क्लोरोप्लास्ट, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है स्टूडेंट्स, उसी तरह से अपने पास होता है क्लोरोप्लास्ट भी. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हमारे पास रहता है. जस्ट अ सेकेंड. जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया वी आल्सो हैव क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल्स में. इवन प्लांट्स आर यूकैरियोटिक इन नेचर, सो प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं. एंड ये क्लोरोप्लास्ट दे आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रियम. व्हाई? बिकॉज इवन दे हैव टू मेम्ब्रेन्स. ठीक है, सो अब मैं किसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ? क्लोरोप्लास्ट का. And I will also keep on detailing you the points about chloroplast. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में कभी सुना है? ये वर्ड पहले कभी सुना है? कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, राइट है. एंड यंग स्टेम में भी प्रेजेंट होता है. यंग स्टेम, जब स्टेम फ्रेश रहते हैं, यंग होते हैं, तो ग्रीन कलर के होते हैं, तो वो भी कुछ अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. सो क्लोरोप्लास्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. हाउ आई ड्रॉ इमेज ऑफ क्लोरोप्लास्ट? सबसे पहले आउटर टू मेम्ब्रेन्स बना लो स्टूडेंट्स. सो ये है आउटर मेम्ब्रेन एंड ये है हमारा इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. इमीडिएटली आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा. माइटोकॉन्ड्रियम में जो इनर मेम्ब्रेन है, इट हैज फोल्डिंग्स, बट ओवर हियर बोथ द मेम्ब्रेन्स आर कंटिन्यूअस. इज दैट करेक्ट? दोनों मेम्ब्रेन्स कंटिन्यूअस हैं, करेक्ट है स्टूडेंट्स? सो आई विल से व्हेन इट हैज आउटर मेम्ब्रेन, it has inner membrane and it has intermembranous space also. रुखसार आपने हाथ ऊपर किया, एनी डाउट? कोई डाउट है? रुखसार शेख, आपका हाथ ऊपर है, कोई डाउट है आपको? Sir, I cannot hear your voice clearly. Will you explain again? No problem, I'll explain again, no problem. So we are doing chloroplast. Chloroplast is present in the plant cells. ठीक है, plant cells में present होता है chloroplast. Chloroplast के पास भी even chloroplast has two membranes, the outer membrane and the inner membrane. ठीक है, outer membrane, inner membrane. Let me mark outer membrane first. So इसको अपन बोलेंगे outer membrane. Correct students, this is our outer membrane. And then हम इसको बोलेंगे inner membrane. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन? inner membrane. नेक्स्ट, द रीजन इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन जो रीजन होता है, देखो यहाँ से लेकर ये पूरा रीजन. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपन इसको क्या बोलते थे? इन माइटोकॉन्ड्रिया हम इस रीजन को बोलते थे मैट्रिक्स. याद आ रहा है आपको? The region inside inner membrane was known as matrix. But over here, यहाँ पे हम उसका नाम चेंज कर देते हैं. क्लोरोप्लास्ट में इसको मैट्रिक्स नहीं बुलाते हैं, तो क्या बुलाते हैं क्लोरोप्लास्ट में? क्लोरोप्लास्ट में इसको बुलाते हैं स्ट्रोमा. क्या बुलाते हैं स्टूडेंट्स इसको? स्ट्रोमा. समझ में आया? बोलो एक बार, स्ट्रोमा. So outer membrane, inner membrane, stroma. Again, outer membrane, inner membrane, stroma. ठीक है. नेक्स्ट, अब बायो में एक टर्म समझने की कोशिश करो. ठीक है, बायो में एक टर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं पता है? पेरी. पेरी कब यूज करते हैं पता है? हम जब हमको किसी भी चीज के अराउंड बातें करनी होती है. जैसे कि अगर मुझे बोलना है पेरी, पेरी का मतलब होता है अराउंड. ठीक है, बायो में पेरी का मतलब होता है अराउंड. ये समझ लो, पहले आपके बुक के फर्स्ट पेज पे जाके लिख लो, पेरी मीन्स अराउंड. ऐसे बहुत सारे टर्म्स मैं आपको बताऊंगा. तो बायोलॉजी में कैसा होता है, इतने सारे टर्म्स होते हैं ना, तो अपने को टर्म्स के पहले जो वर्ड्स होते हैं उसका अगर अपने को मतलब समझ में आने लगा, तो आपका बायोलॉजी पढ़ना एंड समझना दोनों आसान हो जाएगा. ठीक है, पेरी, पेरी मीन्स व्हाट? अराउंड. ठीक है, तो नाउ ध्यान दो,
Now if I want to identify the name of this region which is around stroma, कौन सा रीजन है अराउंड स्ट्रोमा? ये देखो मैं इस रीजन को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रीजन, कैन आई से दिस इज अराउंड स्ट्रोमा? ये पूरा रीजन है स्ट्रोमा के अराउंड, है ना? इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, इट इज अराउंड स्ट्रोमा। करेक्ट? करेक्ट है? सब अग्री कर रहे हैं इससे? कैमरा में हाथ ऊपर करो, कैमरा में हाथ ऊपर करो अगर आप अग्री करते हो तो। यस, ठीक है। सो इस रीजन का नाम मैं क्या लूंगा स्टूडेंट्स? दिस रीजन इज नोन एज, ये रीजन देखो स्ट्रोमा के अराउंड है, तो इस रीजन का नाम है पेरी, वेट, पेरी स्ट्रोमियम, पेरी स्ट्रोमियम स्पेस। ठीक है, क्या नाम है? पेरी स्ट्रोमियम स्पेस। Sir, can you repeat the line what you have said? Yes, I'll repeat. The region around stroma is known as peristromium space. Okay, the region around stroma is known as peristromium space. Clear? Clear? Okay, Yes, very good. sir. In this entire term peristromium, what do I mean by peri? समझ में आया? Around, है ना? सो पेरिस्ट्रोमियम स्पेस का मतलब होता है अराउंड। ओके, मेक श्योर कि यू आर इन प्रॉपर नेटवर्क, बिकॉज आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही है तो हो सकता है आपके यहाँ पे कुछ इशू हो आपके नेटवर्क में, बिकॉज अदर्स कैन हियर मी वेरी क्लियरली। ठीक है, इसका मतलब होता है अराउंड, बाय द वे इसका मतलब होता है अराउंड। आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इमेज आल्सो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, लेट अस प्रोसीड अहेड। सो पेरिस्ट्रोमियम स्पेस के बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ स्ट्रोमा में। सो स्ट्रोमियम में भी ऐसी कुछ बातें हैं जो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रोमियम में भी ऐसी कुछ बातें हैं जो हमको देखना पड़ेगा। सो ऐसे क्या क्या स्ट्रक्चर्स है स्ट्रोमियम में? लेट अस सी। सो स्ट्रोमियम में आपको ऐसे ड्राइंग करना पड़ेगा, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, इस तरह से। ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख रहा है। जैसे कॉइन को आप एक के ऊपर एक रख दोगे, कॉइन्स तो कैसे दिखाई देंगे, वैसे ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे स्टूडेंट्स। ओके, एंड इनसे दूर बाजू में और भी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ भी दिखाई देंगे। इनफैक्ट कुछ स्ट्रक्चर्स तो एक दूसरे को कनेक्ट भी करते हैं, जैसे ये देखो, ये वाला दिख रहा है आपको। सो ऊपर यहाँ, ऊपर यहाँ, नीचे, लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग दिस? ये सबको समझ में आ रहा है इतना? बताओ मुझे। तो ये जो स्ट्रक्चर्स मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रोमा के अंदर, इन स्ट्रक्चर्स को मैं क्या बोलता हूँ? इनको मैं बोलता हूँ, ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर को, ये जो एक फीचर है, प्लीज चेक स्टूडेंट्स नाइसली, इसको समझो अच्छे से। ये देखो, ये जो एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम मैं बोलूंगा थाइलाकॉइड। क्या बोलूंगा इसको मैं? थाइलाकॉइड। ठीक है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, इस एक को मैं बोलूंगा थाइलाकॉइड। एक थाइलाकॉइड के ऊपर दूसरा थाइलाकॉइड, उसके नीचे दूसरा थाइलाकॉइड, दूसरा थाइलाकॉइड, जैसे बहुत सारे थाइलाकॉइड्स अगर आ जाएं, बहुत सारे थाइलाकॉइड अगर आ जाएं, तो आई विल गेट दिस स्ट्रक्चर। ये वाला स्टूडेंट्स, ये चेक करो, कैन आई से दिस इज कलेक्शन ऑफ थाइलाकॉइड्स? This is collection of thylakoids, या one thylakoid placed over the other, stack of thylakoids। जब आप एक के ऊपर एक कॉइन रख देते हो तो कैसे दिखाई देते हैं आपको? कॉइन्स कैसे दिखाई देते हैं? वैसा कुछ मैंने एक के ऊपर एक थाइलाकॉइड रख दिया है। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा? इसको एक को मैं बोलता हूँ ग्रैनम। क्या बोलता हूँ एक को? ग्रैनम। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये देखो, आपका थाइलाकॉइड भी वर्ड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक का नाम है थाइलाकॉइड, पूरे कलेक्शन को अपन बोलते हैं ग्रैनम। एंड ग्रैनम इज अ सिंगुलर टर्म, जैसे रोहिणी इज अ गर्ल, है ना? निधि इज अ गर्ल, सरा इज अ गर्ल। अब मुझे ऐसे बोलना है, सरा, निधि, रोहिणी, दीज आर गर्ल्स।
तो मैंने प्लूरल यूज किया, करेक्ट। सो ग्रैनम इज अ सिंगुलर। प्लूरल क्या है? तो अभी रोहिणी मुझे ये पूछेगी, सर इनको एक साथ बोलना है तो क्या बोलोगे? इन दोनों ग्रैनम को एक साथ बोलना है तो क्या बोलेंगे? तो मैं बोलूंगा ग्रैना। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया स्टूडेंट्स? स्क्रीन पे चेक करो, समझ में आ रहा है आपको? सो रिपीट करूं स्टेटमेंट फॉर्म में, यू ट्राई टू कोरिलेट विद द डायग्राम। स्ट्रोमा कंटेन्स डिस्क शेप्ड फ्लैट स्ट्रक्चर्स या फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होता है स्ट्रोमा में, which are known as thylakoid. One thylakoid is placed over the other and such a structure is known as granum. There are many grana in the stroma. समझ में आया? There are many grana in the stroma because अंदर के पूरे रीजन को तो अपन स्ट्रोमा ही बोलते हैं ना। बताओ, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? स्टार्ट से बोलता हूं, चेक करो डायग्राम और देखते जाओ मेरे स्टेटमेंट्स आपको समझ में आ रहे हैं क्या। क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल कंपोनेंट और सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, दैट टू ओनली इन प्लांट्स। एनिमल सेल्स में कभी नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में भी कौन से टाइप में? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं। सेकेंड पॉइंट, chloroplasts also have two membranes, the outer membrane and the inner membrane. The region inside the inner membrane is known as stroma. The region between two membranes is known as peristromium space. Next, stroma contains flat disc-shaped structures known as thylakoid. Stacks of thylakoid or group of thylakoids is known as granum, and granum का plural form is grana. Clear students? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर? नेक्स्ट, टू ग्रेना बिटवीन टू ग्रेना। देखो बिटवीन वाला कंसेप्ट वापस आ गया, हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था बिटवीन। जब भी मुझे बिटवीन बोलना है तो मैं क्या टर्म यूज करूंगा बिटवीन के लिए? बताओ, इन बिटवीन बोलने के लिए क्या टर्म? इंटर। शाबाश मृण्मयी, वेल डन मृण्मयी। इंटर इज द करेक्ट टर्म। इंटर, जैसे इंटर स्कूल याद रहा? इंटर स्कूल, इंटरव्यू, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटरनेट, इंटरएक्शन, इंटर स्टेट, इंटरनेशनल, इंटर सिटी, इंटरकॉम, सब जगह जहां जहां भी इंटर यूज हो रहा है इट इज इन बिटवीन, इन बिटवीन, इन बिटवीन, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पॉइंट स्टूडेंट्स, ये देखो कनेक्शन है। ये किसके बीच में कनेक्शन है? बिटवीन टू ग्रेना। कैन आई से दैट? ये दो ग्रेना को कनेक्ट कर रहा है ना, तो मैं इसका क्या नाम लूंगा? इसको मैं बोलूंगा इंटर ग्रेना लैमिला। इंटरग्रेना लैमिला। बताओ समझ में आया आपको? इट इज नोन एज इंटरग्रेना लैमिला। इंटरग्रेना लैमिला। चलो फटाफट से डायग्राम बना लो, जल्दी जल्दी से। बहुत लोग सुनते सुनते भी डायग्राम बना रहे थे तो वो जीत गए, ठीक है। जिसने नहीं बनाया वो हार गया। तो अब आपको बनाना है, हारे हुए लोग चलो बनाओ अब। हाँ पूछ पूछ अफजल। सर एक बार रिपीट करो ना सर, डिस्कनेक्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, पूरा रिपीट करता हूँ। पहले एक बार डायग्राम बना ले, फिर मैं रिपीट करता हूँ। पहले डायग्राम बना ले बिकॉज सेशन एंड हो जाएगा तो वापस डायग्राम अपलोड करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लो स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके बाद स्क्रीनशॉट्स भेजूंगा, बट आपके फोन में भी आपको लेना तो ले सकते हैं। ड्रॉ दी डायग्राम फटाफट से, रेज योर हैंड वंस यू आर डन, वी विल मूव अहेड विद द एक्सप्लेनेशन वंस अगेन।
Raise your hand once you are done, students. सर हाँ ऋषु बोल। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में रहता है उसे क्या बोलते हैं? क्या क्या? इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन के मिडल में रहता है उसे क्या बोलते हैं? पेरिस्ट्रोमियम स्पेस। पेरिस्ट्रोमियम स्पेस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूं स्टेटमेंट। ये देखिए, ये स्पेस को अपन बोलेंगे पेरिस्ट्रोमियम स्पेस। ओके, पेरिस्ट्रोमियम स्पेस। स्टूडेंट्स जॉइन मी अगेन क्विकली बाय यूजिंग द सेम लिंक एंड पासवर्ड। ठीक है, अभी अपन इसका एक्सप्लेनेशन पहले सुनेंगे, मैं वापस से आपको रिपीट करूंगा एंड देन अपन सब एक एक करके रिपीट करेंगे। ठीक है, पहले लिख लेंगे इसको आंसर फॉर्म में एंड देन वी विल रिपीट दिस। और मैं जब भी आपको बोल रहा हूँ रिपीट करने को, मेक श्योर आप मेरे साथ रिपीट करो ताकि आप इंडिविजुअली भी बोल पाओ, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाए। जब आप आंसर्स दोगे ना लेक्चर्स में, जैसे ऋषु आंसर दे रहा है, पायल आंसर दे रही है, अनुराग आंसर दे रहा है, अफजल आंसर दे रहा है, तो आप भी आंसर दो। बाकी लोग ऐसे डरो मत, टेंशन मत लो, आंसर दो। आपको और अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, मजा आएगा और। ठीक है, चलो जॉइन मी क्विकली।